Again, good afternoon, everyone. Am I audible? Please confirm anyone. Yes, sir. Good morning, sir. I am Dr. Gavish Kumar. Would like to introduce my HOD, Dr. Manpreet Bhalla, and in charge NRL, and my colleagues, Dr. Niti Singh, consultant microbiologist NRL, and Prashant Goswami, consultant microbiologist NRL. So, welcome all the participants to today's sessions that is on maintenance and troubleshoot in in this session we would focus on essential practices that require to net system functionality accurately and the quality assured results. So we will also learn how to identify common issues and apply practical troubleshooting steps. I would also like to welcome Ms. Sifa Khan, Eco India. She will be available for hold the session for technical issues, if any. Now, I would like to request Dr. Manpreet Bhalla, ma'am, HOD Department of Microbiology and in charge NRL, to say a few words about this session. Your presence and guidance will greatly inspire the participants. Thank you, Dr. Gavish. Good afternoon and welcome once again to everyone. And we invite you to join our this eco session for capacity building for IRLs, culture and DST labs, and TDCs through eco platform. So today's topic is maintenance and troubleshooting in TrueNet, which will be taken by Dr. Niti Singh, consultant microbiologist. So as you all know that the aim of these sessions is to do the hand holding and support all of the sites and clear all the doubts. If there are any doubts related to the technical issues, we like to clarify all these doubts in these sessions. So this is not a one-way session. So we encourage everyone. हम सबके लिए ये सेशन रखा है कि हम हमारी साइट्स के लिए कि जो भी उनके डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए है। और ये हम चाहेंगे कि आप लोग अपने क्वेरीज रेज करें, आपकी जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज, वो आप अपना यहाँ पे बता सकते हैं और हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। सो दिस सेशन इज फॉर दिस रीजन ओनली. So next we will be Dr. Niti will be taking the didactic on troubleshooting for maintenance and troubleshooting in TrueNet, followed by case presentation by Dr. Preeti Bala, microbiologist from IRN Karnal. So hand over to Dr. Gavish to continue the proceedings. Now participants are requested to attend the pre-test. Link is available in your chat box. So I now request our esteemed speaker, Dr. Niti Singh, consultant microbiologist, to kindly begin the session. Over to you, Dr. Niti, ma'am. Good morning, everyone. I hope you all know me. I am Dr. Niti Singh, consultant microbiologist in NRL, NITRD. एंड आई होप आप लोगों ने जनरली मुझसे मुलाकात कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे जरूर हुई होगी। और आज हम बात करेंगे TrueNet में हाउ टू मेंटेन द इक्विपमेंट एंड व्हाट टू डू इन केस ऑफ इफ देयर इज एनी ट्रबल शूट। सो आई एम श्योर आप लोग इसका डेली मेंटेनेंस का जो लॉग है, जो बिल्कुल आपके राइट साइड में लोअर हाफ में नजर आ रहा है, आप लोग उसको भर रहे होंगे। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक हमें होता है उसमें डेली मेंटेनेंस का जो लॉग होता है, एक होता है मंथली मेंटेनेंस, एक होता है हमारा एसओएस। एसओएस मीन्स व्हेन एवर देयर इज ए नीड टू मेंटेन दैट लॉग। तो अगर आप लोग नहीं भर रहे हो अभी तक ये मेंटेनेंस लॉग, तो प्लीज आप भरना शुरू कर दीजिए। तो डेली मेंटेनेंस में जब हम बात करेंगे तो वी आर टू क्लीन द वर्क एरिया, मीन्स जहां पे आप काम कर रहे हैं उसको आपको डेली ही क्लीन करना है। और क्लीन करने का आई होप आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि कैसे करना होता है। 8 की शेप में आपको उसको क्लीन करना है, सरफेस एरिया को जहां पे आपने मशीन रखी हुई है।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी मैं जाती हूँ तो किसी किसी ने मैंने देखा है कि मशीन के नीचे आप लोगों ने फिल्टर पेपर, किसी ने कपड़ा, किसी के अंदर पॉलीथीन, किसी के नीचे कुछ पीवीसी शीट, ये सब बिछाई होती है। तो मैं एडवाइस करूंगी आप लोगों को कि उसके नीचे एक सिंपली जो आपका पत्थर का जो स्लैब है उसके ऊपर ही मशीन को रखना है, सो दैट इट कैन बी इजिली क्लीन्ड डेली। उसके नीचे आपको कोई कपड़ा, पॉलीथीन या कोई भी टिश्यू पेपर या फिल्टर पेपर ये सब नहीं बिछाने हैं। और आपको इंस्ट्रूमेंट की सरफेस को भी रोज क्लीन करना है। जितनी भी चिप आपने यूज कर ली हैं, कार्ट्रिजेस यूज कर लिए हैं, उनको रोज डिस्कार्ड करना है और मेंटेनेंस लॉग में डेली आपको भरना है। अब इसको क्लीन किससे करना है, वो है इसमें आपको 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज करना है, फिनोल नहीं यूज करना है। इसमें आपको फिनोल नहीं यूज करना है, 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज करना है। और जब आप एक बार वाइप कर देते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ में, उसके बाद में आप आइसोप्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ साफ करेंगे। और अगर आपकी लैब में आइसोप्रोपेनॉल नहीं है अगर, तो आप स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। अब मंथली मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या करना होता है आपको, उसमें आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड लेके और या फिर फॉलोड बाय 70% अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर के साथ में कोई भी क्लीन क्लॉथ लेके, पर वो क्लॉथ आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिंट निकलते हो। लिंट मतलब धागे नहीं निकलने चाहिए उसके, क्योंकि वो उस पे छूट जाएंगे मशीन के ऊपर और वो हो सकता है आपके टेस्ट में कभी ना कभी कोई एरर कर दे। तो या आपको टिश्यू पेपर लेना है या लिंट फ्री क्लॉथ लेना है, तो वो करना है। और जो उसकी बेस होती है, बेस मतलब जहां पे आप चिप या अपनी रखते हो, टेस्ट करने के लिए कार्ट्रिज रखते हो, चिप रखते हो, वो जो बे है, रास्ते हैं उसका जहां रखते हो आप, उसको भी क्लीन करना है। और टेम्परेचर का कैलिब्रेशन जो है वो ट्रू नेट का भी देखना है। जब आप कभी कभी आप देखते होंगे ब्लिप्स, ब्लिप्स देखे आपने? ब्लिप्स पता है आपको? ब्लिप्स का मतलब होता है ऑल ऑफ ए सडन अगर बहुत ब्राइट हो जाता है उसका स्क्रीन या बहुत ज्यादा डिम हो जाता है, उसको हम ब्लिप्स कहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट मीन्स उसकी टेम्परेचर की कैलिब्रेशन की जरूरत है। वो शायद आप लोग अपने आप से नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको कंपनी वाले को बुलाना पड़ेगा। या आप जब भी आपके पास में इंजीनियर आता है ना, कभी कभी बिल्कुल एएमसी में आपका इक्विपमेंट सारे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो लोग आते रहते हैं आपके पास। या फिर कभी कभी वो पाइपेट को चेंज करने के लिए आते हैं, जो कि हमारे पास हम फिक्स्ड 6 माइक्रोलीटर की पाइपेट यूज करते हैं, उसको चेंज करने के लिए आते हैं हर 6 महीने के बाद में। उस टाइम पे उसको बोल दीजिए कि उसका टेम्परेचर का वो कैलिब्रेशन कर दे। नेक्स्ट। तो मेंटेनेंस शेड्यूल में एक आती है हमारी एनुअल मेंटेनेंस। एनुअल मेंटेनेंस में क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस में एक तो ये है कि वो उनका इंजीनियर आके आपका करेगा जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। और दूसरा होता है, एक होता है फ्लश प्रोटोकॉल, हमें फॉलो करना होता है। और फ्लश फ्लश प्रोटोकॉल हमें तब करना होता है जब रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड क्या कब होता है कि या तो हमारी मशीन कभी भी 10 दिन या उससे ज्यादा दिनों के लिए अगर हमने यूज नहीं करी, तो हमें फ्रेश प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करना है। क्योंकि क्यों करना है ये ऐसा, क्योंकि हमने उस मशीन को बहुत दिन से यूज नहीं किया, तो हो सकता है जितने भी रिएजेंट हम उसके अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर जितने भी सॉल्ट हैं, वो हो सकता है उसकी जो पाइपलाइन है, जो पाइप्स हैं उसके अंदर पतली पतली, उसके अंदर वो जम गए हों। अगर वो जम जाएंगे तो ऑब्वियसली आप जो डिस्पेंस करना चाहते हैं जितना वॉल्यूम किसी भी चीज का, वो उतना डिस्पेंस नहीं होगा सही तरीके से। इसलिए हमें उसका फ्लश प्रोटोकॉल करना है। या कभी कभी हमें लगता है कि एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में हमारे जो है ठीक से एल्यूट नहीं आ रहा, या हमारा जो डीएनए ठीक से नहीं आ रहा, या हमारा बीच में रुक जा रहा है, उसमें एक्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, तब भी हमें उसका एरर्स आने लग जाती हैं, तब भी हमें एक बार उसका फ्लश प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और दूसरा होता है जो स्पिलेज ट्रे, जब हम उसमें अंदर 6 माइक्रोलीटर जब डीएनए लोड करके जब हम उसको पीसीआर के लिए लगाते हैं, तो उसके नीचे एक स्पिलेज ट्रे होती है। स्पिलेज ट्रे क्या होती है, एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्रे जैसी होती है, जिसके अंदर अगर आपका सैंपल जो है वो स्पिल हो गया तो वो उसके अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो हमारा, इसलिए हमें वो स्पिलेज ट्रे को चेंज करना पड़ता है। तो उसको चेंज करना होता है, हमें उसको हटा के नई लगानी होती है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पिलेज ट्रे हमेशा देके जाते हैं कंपनी वाले।
और स्लाइडर क्लास जो होता है उसमें क्या होता है कि जब भी आपके 200 टेस्ट हो गए, या आपको पता होता है कि आपने आपको नोट करके रखना है कि स्लाइडर क्लास आपने कब चेंज किया था, उस डेट को आप चेक कर लीजिए और उस डेट से लेकर के आप देख लीजिए कि आपके 200 टेस्ट जिस दिन हो जाते हैं तो आपको स्लाइडर क्लास उसका चेंज करना है। या कभी कभी आपके उसमें एरर अगर बार बार आ रही है तो आप उसका स्लाइडर क्लास को जरूर चेंज कर लें, कि स्लाइडर ग्लास भी आपके पास में आई होप कंपनी वाला एक्स्ट्रा हमेशा दे करके जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब क्या है कि अगर आपको बैटरी चार्जिंग की अगर बात करें हम, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बैटरी के ऊपर भी चलता है, तो इसमें जो इनबिल्ट बैटरीज हैं उनकी जो पावर है वो 8 घंटे तक बिना उसके चल सकती है, बिना इंटरप्शन के चल सकती है। तो अगर आपने उसको चार्ज ही नहीं करा तो फिर क्या होएगा, वो आपका जो डिवाइस है वो ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि डिवाइस जो है वो तभी ऑन होगा जब उसके पास सफिशिएंट चार्जिंग होएगी। क्योंकि उनको पता है कि ये टेस्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, इसलिए आप हमेशा क्या करें कि शाम को जब आप जाते हैं तो अपनी बैटरियों को, इक्विपमेंट की बैटरीज को सबको चार्जिंग पे लगा करके कंप्लीट चार्जिंग करके तब जाइए। तो वो क्या होता है कि जो बैटरी है उसके अंदर, इक्विपमेंट के अंदर बैटरी है, उसकी जो लाइफ है अगर हम उसकी बात करें तो इट सर्वाइव्स, इट रिमेन्स देयर फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर की लाइफ टाइम है उसका होने का। और अगर आप बात करें कि कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली चार्ज करने का, तो जो पीसीआर एनालाइजर है उसमें 4 घंटे लगते हैं और ट्रू प्रेप जो डिवाइस होता है उसमें 9 to 10 आवर्स लगते हैं। इसीलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, ओवरनाइट भी चार्जिंग के लिए लगा करके छोड़ सकते हैं। और जो प्रिंटर होता है किसी किसी लैब में अगर प्रोवाइड किया गया है, सब में नहीं हो सकता हो आपके पास, उसमें भी 4 to 6 आवर्स लगते हैं फॉर द चार्जिंग। और आप करें कि उसको, इंस्ट्रूमेंट को आप जब आप यूज कर रहे हैं तब भी आप उसकी चार्जिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से उसको चार्जिंग लगाना है और फिर इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, बट विद द कंडीशन कि आपकी लैब में अर्थिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट। अगर आप डूज एंड डोंट्स की बात करें तो क्या करना होगा आपको, कि आपको डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रखना है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से फॉलोड बाय डिस्टिल्ड वाटर उसको क्लीन करना है, फिनोल से कभी भी क्लीन नहीं करना। और कार्ट्रिज होल्डर जो है उसको आपको रिप्लेस करना है हमेशा से, इन केस आपकी जो है स्पिलेज हो गई है अगर तो। और अगर आपका 10 दिन से ज्यादा तक वो रहा है खाली तो उसका आप फ्लश फ्लश वाला प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करेंगे। और जब भी आपका इक्विपमेंट यूज हो रहा है तो उसको कभी भी मूव नहीं करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इवन 1 इंच भी नहीं हटाना है आपको, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना। अगर आपको कहीं उसको मूव करना है तो आप प्लीज टेस्ट शुरू होने से पहले ही उसको मूव कर लीजिए, उसके बाद में नहीं करना। और जितना भी यूज्ड मटेरियल है वो कभी भी आप इक्विपमेंट के ऊपर नहीं रखना, वर्किंग एरिया है जो उसमें नहीं रखना, जो यूज्ड मटेरियल है उसको आप इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना है जब आपको काम नहीं आता। और जब भी आपका टेस्ट चल रहा हो तो किसी भी इक्विपमेंट को आपको टिल्ट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। और जो आपके बफर वगैरह आप यूज करते हो, बॉटल का जो लाइसिस बफर वगैरह आप यूज करते हो, उनको कभी भी आपको उसकी टिप को टच नहीं करना, क्योंकि इन केस आपके जो ग्लव्स हैं अगर वो कंटेमिनेटेड हैं, और वो कंटेमिनेटेड है विद द पॉजिटिव सैंपल, तो हो सकता है आपका बेसिलाई कोई उसके अंदर एंटर हो जाएगा और दैट में लीड टू द फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन, जो कि ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब क्या है कि जो एनालाइजर है उसको फ्लैट सरफेस पे रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, उस पे कोई वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। और आपको उसकी सरफेस को क्लीन करना है। और एल्यूट जो है जब भी आपके पास आ जाता है तो उसको इंश्योर करें कि उसको आप एल्यूट को जब आप उसमें पीसीआर रिएक्शन के लिए रखते हैं तो जो उसका वेल बना हुआ होता है उसके सेंटर में डालना है आपको, बिकॉज आप उसमें कितनी क्वांटिटी डाल रहे हो, सिर्फ 6 माइक्रोलीटर यू आर एडिंग, विच इज वेरी वेरी लो। तो जब आप 6 माइक्रोलीटर को अगर इधर उधर साइडों में उसकी वॉल में डाल देंगे अगर आप, तो हो सकता है आपका रिएक्शन जो है वो ठीक से ना हो, तो आपकी जो रिजल्ट है वो फाल्स नेगेटिव आ सकते हैं। और आपको फिर क्या करना है, यूज्ड मटेरियल कोई भी बेंच पे नहीं रखना है। और आपको जब भी चिप उसकी पकड़नी है तो उसको साइड से पकड़ना है, जैसे कि पिक्चर में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि आपको उसको साइड से पकड़ना है। उसके ऊपर जो पैड बने होते हैं, चिप के ऊपर जो पैड बने हैं उनको भी टच नहीं करना, और उसका जो आगे का एरिया है उसको भी टच नहीं करना, हमेशा उसको
उसको साइड से होल्ड करना है, जैसे कि आप लोग जनरली माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को होल्ड करते हो उसी तरह से। नेक्स्ट। अब जब अपने नया रिएजेंट पैक लगाना है, रिएजेंट पैक आप लगाते हो ना, तो कभी भी जब आपको एक तो उसका ढक्कन खोलना है, आपको उसके ऊपर होल्डर लगा होता है, तो उसको आपको चेंज करने के पहले आपको उसको ढक्कन उतारना है, और कभी भी उसका जो मुंह है, जो रिएजेंट पैक का जो होल्डर है, उसको कभी भी नीचे नहीं छोड़ना। अगर आपने नीचे की तरफ को छोड़ दिया उसको, तो हो सकता है आपका रिएजेंट थोड़ा सा उसमें से फ्लो आउट हो जाएगा। इसलिए कनेक्टर को हमेशा आपको हाथ में होल्ड करके रखना है और प्रॉपरली उसको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब आपको होल्ड करने के बाद में आपको कनेक्ट करने का तरीका भी बताया है। ये नहीं कि आपने उसको आधा कर दिया उसके साथ में कनेक्ट और पूरा फिट नहीं करा। आपको उसको दबा करके क्लिक, जब तक क्लिक करने की आवाज ना आए तब तक आप उसको फिट करेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा नहीं किया तो हो सकता है आपका कुछ रिएजेंट उधर से लीक आउट हो जाएगा, एंड उसमें क्या होगा, आपका रिएजेंट भी कम पड़ जाएगा जो आपका 50 टेस्ट के लिए होता है, और ये भी हो सकता है कि आपका टेबल टॉप जो है वो खराब हो जाए क्योंकि आपका रिएजेंट स्पिल आउट हो गया। नेक्स्ट प्लीज। अब क्या है कि बफर काउंट जो है उसको रीसेट भी करना होता है आपको। जब भी आपके 50 टेस्ट हो गए तो आपका उसमें आ जाता है कि आपको एक तो ये रिएजेंट दोबारा लगाना होता है और उसका काउंटिंग जो है वो दोबारा सेट करना होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके दोनों बटन एक साथ करने हैं प्रेस, तो आपके क्या होएगा, उसमें रीसेट हो जाएगा। प्रेस आपको स्टार्ट का बटन और इजेक्ट का बटन साइमल्टेनियसली जब आप करेंगे तो वो आपका कार्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा, फिर वो 50 टेस्ट तक आपका वो काम करेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो ये उसी का ही तरीका दिखाया हुआ है मैंने कि वो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट। तो बफर काउंट रीसेट आप करने के बाद में आप क्यूआर स्कैनिंग जो है वो एनेबल हो जाती है, और फिर उसके बाद में आप 50 टेस्ट कर सकते हो। अगर आपका कार्ड आपने नया डाला है तो भी आपको उसको फिर से रीसेट करना पड़ेगा एक बार। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये सब हो गया। अब क्या है कि जब आपने प्रोसीजर क्या होता है, रिप्लेस करना है न्यू रिएजेंट पैक, तो आपको कैसे करना है, उसमें आपको क्या करना है, 0 पे पहले सेटिंग करनी है, फिर उसको सेव कर देना है। उसमें एक मैसेज आ जाएगा कि रीसेटिंग सेव्ड, आपकी सेटिंग अब सेव हो गई है। तो फिर आपको इजेक्ट बटन जो है वो करना है, एंड तब आपको क्या करना है, उसमें बारकोड जो एग्जिट ऑप्शन में आ जाएगा। तो वंस एग्जिट ऑप्शन इज डिस्प्लेड, तो फिर आप उसमें क्या करोगे, ओके कर दोगे, तो वो फिर आपका इक्विपमेंट जो है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये सब हो चुका है। अब ये है कि प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द रिप्लेसेबल स्पिलेज ट्रे। जब आपको स्पिलेज, अगर आपको कभी लगता है कि आपसे स्पिलेज हो गई है, बिकॉज हम लोग सारे ह्यूमन बींग्स हैं, कभी भी गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, बट इट हार्डली मैटर्स, बट आप उसको इग्नोर नहीं करना प्लीज। जब भी आपसे स्पिलेज कभी हो गई है तो आपको जो नीचे वाली स्पिलेज ट्रे है उससे जरूर आपको रिप्लेस करना है, और जो आपकी जो स्पिलेज कार्ट्रिज होल्डर एरिया है उसको भी आपको फिनोल से साफ करना है, आइसोप्रोपेनाइल अल्कोहल से साफ, फिनोल से नहीं सॉरी, आइसोप्रोपेनाइल प्रोपाइल अल्कोहल से साफ करना है। और अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके पास नहीं है तो आप स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने गलती से फिनोल बोल दिया था, प्लीज मेक इट ए फिनोल नहीं यूज करना है। नेक्स्ट। अब जो ग्लास स्लाइडर जो होता है आपका, वो उसको आपको कैसे चेंज करना है, उसमें आपको उसका जो है बे जिसमें आपको चेंज करना है उसको बाहर निकालो, और बाहर करने ओपन कर लो। ओपन करने के बाद में आपको स्लाइडर जो है उसको फोर्सेप की हेल्प से उसको रिमूव कर दो, विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप, और उस ग्लास स्लाइडर को, जो कि आप देखेंगे क्लियर नहीं होगा, वो हेजी हो जाता है। हेजी होने के बाद में आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, उसको डिस्कार्ड कर दे। नेक्स्ट। एंड तब आप फिर उसके में नया ग्लास स्लाइडर जो आपको कंपनी वाले ने दिया हुआ है उसको आप उठा लें, और उसको देखें कि उसके दोनों तरफ जो है एक कवरिंग लगी होती है। तो आप उसको फोर्सेप की हेल्प से आप उसकी एक तरफ की कवरिंग उठाइए, फिर दूसरी तरफ की भी कवरिंग निकाल दीजिए, और बट आपको उसको कभी भी ग्लास स्लाइडर को साइड से पकड़ना है, अगर ऊपर से टच नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऊपर से टच करोगे तो आपके जो ग्लव्स हैं या आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगे, एंड इट विल मेक द ग्लास स्लाइडर हेजी।
तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। इसलिए कभी भी उसको ऊपर से नहीं पकड़ना है, साइडों से पकड़ना है। और दोनों शीट्स रिमूव करने के बाद में जहां से आपने ग्लास स्लाइडर को रिमूव किया था वहीं पे आप फोर्सेप की हेल्प से उसको इंसर्ट कर देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट, ये वही तरीका है आपको दिखाया हुआ है कि ग्लास स्लाइडर को कैसे चेंज करना है। एंड आई होप आप लोग सब कर रहे हो एंड ऑलरेडी यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि हाउ टू डू इट। नेक्स्ट, अब क्या है कि एक आपकी जो गलती होती है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप कार्ट्रिज इसमें लोड करते हैं डीएनए के लिए, इल्यूशन के लिए, तो आप लोग बोलते हो कि हमारा कार्ट्रिज या तो ठीक से फिट नहीं हो रहा या हमारा इल्यूट नहीं आ रहा। उसमें क्या होती है गलती, जनरली क्या होती है कि जो हमने पहले इल्यूट किया होता है उसमें क्या होता है, रबर वॉशर्स हैं। आपने देखा है कभी कार्ट्रिज देखा होगा ना, उसकी बैक साइड में रबर वॉशर्स लगे होते हैं। वो कभी कभी प्रीवियस सैंपल जब आपने रन किया था तो वो स्टक हो जाते हैं उसके अंदर में। तो प्लीज इंश्योर कर लीजिए कि कोई भी प्रीवियस रन का जो रबर वॉशर है वो उसके ऊपर स्टक तो नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो उसको रिमूव कर दीजिए, देन यू पुट योर कार्ट्रिज एंड द इल्यूट विल कम। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कार्ट्रिज नया लोड करेंगे उसमें, तो आप एक तो रबर वॉशर का ध्यान रखें, दूसरा ये देख लीजिए कि उस कार्ट्रिज में कोई ब्रेकेज तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ब्रेकेज होती है ट्रांसपोर्टेशन में, कभी कुछ ब्रेक हो गया या गिर गया तो कुछ हो सकता है। और तीसरा आप ये देख लीजिए कि उसके अंदर जो पतली पतली ट्यूब्स दिखती हैं ना, कैपिलरी ट्यूब्स दिखती हैं, वो फ्री हैं, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आपको कार्ट्रिज लोड करना है। नेक्स्ट, अब क्या है कि जो हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, जो जब हम ट्रू नेट ऐसे करते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस विच वी फेस इन द लैब। एक तो होते हैं हार्डवेयर रिलेटेड। हार्डवेयर रिलेटेड क्या होते हैं, प्लीज ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर सेल्फ। हम गाने सुनने नहीं आए, पढ़ाई करने आए हैं। एक तो होते हैं हार्डवेयर रिलेटेड, उसमें क्या होता है कि एक तो ट्रू प्रेप ऑटो में कुछ इशू है, या पीसीआर एनालाइजर में इशू है, या माइक्रोपाइपेट में इशू है, या फिर बैटरी में इशू है। अब ट्रूनेट किट से रिलेटेड भी होते हैं। ट्रूनेट किट से रिलेटेड क्या है, कार्ट्रिज में प्रॉब्लम हो सकती है, चिप में प्रॉब्लम हो सकती है, और रिएजेंट्स जो आप यूज कर रहे हो ट्रूनेट टेस्ट करने के लिए उनमें इशू हो सकता है। नेक्स्ट, अब क्या है कि जो हमारे पास एरर्स आती हैं, ट्रू नेट की एरर्स आती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की आती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ट्रू प्रेप ऑटो करते हो, V2 मतलब वर्जन 2 जो आप लोगों के पास है, उसमें कौन कौन सी एरर होती है, E1, E2, E3, E6, E9, E10, E11, 12, 13, 14, 15, और कुछ कुछ वार्निंग मैसेजेस भी आते हैं। अगर आप ट्रू ट्रू लैब का रियल टाइम पीसीआर एनालाइजर का देखेंगे, तो उसमें 1 से लेकर के 10 तक एरर आती हैं। एरर 1, 2, 3, 4, 5, 8 एंड 10। और कभी कभी उसमें भी अलर्ट मैसेजेस आते हैं जो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या है कि जब आप यूनिवर्सल कार्ट्रिज बेस्ड सैंपल प्रेपरेशन डिवाइस यूज करते हो, तो उसमें जो एरर्स आती हैं, E1 का मतलब क्या होता है, E1 का मतलब क्या होता है कि उसमें वाल्व की एरर है। वाल्व की एरर जब आती है आपको, तो आपको क्या करना है, इजेक्ट करके उसको दोबारा से लोड करना है। और फिर E2 है जो, उसमें क्या होता है, कार्ट्रिज की एरर होती है। और E3 जो आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो कार्ट्रिज है वो क्लॉग्ड है। और कार्ट्रिज क्लॉग्ड जो है वो जनरली कंपनी से कभी भी जो फ्रेश आते हैं उनमें कभी क्लॉगिंग नहीं होती है। कार्ट्रिज की क्लॉगिंग कब होगी, जब आपने सैंपल उसमें लोड कर दिया जो कि प्रॉपरली लिक्विफाई नहीं हुआ था। तो दैट मीन्स क्या है कि अगर E3 आपकी एरर आ रही है, तो ये आपके टेक्निकल इशू है, ये आपके टेक्नीशियन की गलती है या STLS की गलती है जो कि उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं भी करूंगी तो मेरी भी गलती होगी अगर मेरे पास E3 आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है कि आपको प्रॉपरली लिक्विफाई होने से पहले कभी भी कार्ट्रिज में सैंपल को लोड नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर जो कैपिलरी होती है वो आपने देखा होगा बहुत पतली पतली होती हैं। उसके अंदर अगर आपने सॉलिड वाला सैंपल जो भी प्रॉपरली लिक्विफाई नहीं हुआ उसको अगर आपने लोड कर दिया, तो E3 एरर आपके पास आती रहेगी। E6 आपके पास कब आती है, जब आपने उसके अंदर कार्ट्रिज ही लोड नहीं करा, कार्ट्रिज ही लोड करना भूल गए आप।
तो E9 कब आएगी? जब आपने उसमें कार्ड को रीसेट नहीं करा। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि 50 टेस्ट होने के बाद में आपको कार्ड को रीसेट करना पड़ता है, क्योंकि वो 50 टेस्ट के लिए ही बना है। अगर आपने रीसेट नहीं करा तो E9 आ जाएगी। E10 अगर आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या लिखा हुआ है? इनवैलिड। इनवैलिड, हाँ, इनवैलिड होता है। उसमें उसमें भी कार्ड को आपने ठीक से रीसेट नहीं करा। मीन्स आपको इजेक्ट एंड स्टार्ट का बटन दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करोगे तभी वो रीसेट होगा। वो नहीं हुआ तो आपको उसको दोबारा करना पड़ेगा। E11 एंड 12 जो है वो क्या होते हैं? हमारे जो एरर होते हैं उसमें E12 जो है वो रीडिंग के एरर होते हैं। E14 एंड 15 जो होते हैं वो कार्ट्रिज क्लॉग्ड होता है। तो इसके नीचे जो मैंने लिखे हुए हैं वो सोल्यूशन लिखे हुए हैं। E2, E14 एंड E15 के लिए जब भी कभी आपके पास एरर आती है तो आपको जितना भी सैंपल आपके पास दोबारा बचा हुआ है, क्योंकि आपने आपके ऐसा तो नहीं ना आपने सैंपल लोड कर दिया था अंदर, तो जो आपके पास लिक्विफाइड सैंपल है लाइसिस बफर डालने के बाद में उसको आप दोबारा जो रिमेनिंग सैंपल है उसको आप लेकर के दोबारा लोड कर दीजिए नए कार्ट्रिज के अंदर। पुराना वाला कार्ट्रिज आपको नहीं यूज करना। अगर आपके पास E2, E14 एंड E15 एरर आती है तो आपको पुराना कार्ट्रिज नहीं यूज करना, नया कार्ट्रिज यूज करना है। E3 अगर एरर आती है तो आपको यही देखना है कि सैंपल आपने प्रॉपरली लिक्विफाई नहीं किया है। पाइपेटेबल होना चाहिए, लिक्विफाई हो जाना चाहिए, इसीलिए आपको करना है। बट अगर E3 अगर आपके पास एक बार ये आ गया एरर तो भी आपको नया कार्ट्रिज लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना कि आप अननेसेसरी अपने कार्ट्रिज वेस्ट करोगे अगर आप ये गलतियां करते हो। इसलिए प्लीज आप थोड़ा उसको देख के करिए कि जब प्रॉपरली हो जाता है लिक्विफाई और प्रॉपरली आपने रीसेट कर लिया कार्ड को तभी आप उसको लोड करेंगे। E2 एंड E6 के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो नोजल है उसके ऊपर रबड़ की जो सील है वो लगी हुई है, इसीलिए आप उसको हटा दीजिए और उसको नया कार्ट्रिज लगा दीजिए। E1, E9, E10, E11 एंड E12 जो है अगर आपके पास ये वाली एरर्स आ रही हैं E1, E9, E10, 11 एंड 12 तो इनका सोल्यूशन आपके पास नहीं है। अगर ये वाली एरर्स आ रही है तो आपको मॉल बायो का जो सपोर्ट वाला इंजीनियर है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको मोस्टली वो क्या कर देगा, वो आपको फोन से ही बता देगा उसका सोल्यूशन। और इन केस ऐसा नहीं हो पाएगा तो ही विल पर्सनली कम टू योर सेंटर एंड विल सॉर्ट आउट द इशू। नेक्स्ट प्लीज। अब क्या है, एरर 1 जो है उसका मैंने आपको बता दिया कि आपको फ्रेश सैंपल एरर E1 अगर आती है तो वो कार्ट्रिज एरर होती है और कार्ट्रिज के वाल्व की एरर होती है। तो आपको हम दोबारा सैंपल पड़ेगा पेशेंट का, या तो अगर आपके पास खत्म हो गया, अगर आपके पास बचा हुआ है पहले का सैंपल तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। बट आपको कार्ट्रिज हमेशा फ्रेश लेना पड़ेगा उसके लिए। और अगर फिर भी नया कार्ट्रिज लेकर के फिर भी आपके पास वही इशू आ रहा है तो आपको सपोर्ट को मॉल बायो के सपोर्ट वाले इंसान को फोन करके बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट। E2 में क्या है? E2 में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने दोबारा से जितना भी आपके पास सैंपल बचा हुआ पड़ा है उसको लोड कर दीजिए। बट अगर दोबारा लोड करने पे फ्रेश कार्ट्रिज लेने पे भी आपके दोबारा रिपीट हो रही है तो ये नहीं कि आप 10 कार्ट्रिज यूज करे जा रहे हो। एक बार आपके एरर आ गया तो आप नया कार्ट्रिज यूज करेंगे। नए कार्ट्रिज में भी अगर सेम इशू आ रहा है तो आपको प्लीज तीसरा कार्ट्रिज नहीं यूज करना है। यू कॉन्टेक्ट द मॉल बायो इंजीनियर एंड ही विल असिस्ट यू। नेक्स्ट। E3 में क्या है कि आपने प्रॉपरली लिक्विफाई नहीं किया है सैंपल को तो आपके पास वो आ गया, तो आप इसको सैंपल को पूरा इंश्योर कर लीजिए कि प्रॉपरली लिक्विफाई हो गया, पाइपेटेबल हो गया। तो आप उसका कोशिश करिए कि अगर आपका नहीं हुआ है तो उसको आप या तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए अगर आपके पास सैंपल बचा हुआ है तो। अगर आपके पास सैंपल बचा हुआ नहीं है तो यू रिक्वेस्ट द पेशेंट टू गिव अनदर सैंपल, तो फिर उसको आप रिपीट करेंगे। बट 2 बार के बाद आपको रिपीट नहीं करना। अगर फिर भी सेम इशू आता है तो आप अपना मॉल बायो के इंजीनियर को कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट। E4 में क्या होता है कि आपने यूज्ड कार्ट्रिज यूज कर लिया। कई बार क्या होता है कि अगर आपने
कार्ट्रिज को यूज किया था, फिर आपने उसी वर्किंग एरिया पे टेबल पे ही छोड़ दिया एंड यू फॉरगॉट कि ये कार्ट्रिज मैंने यूज किया था कि नहीं किया था। तो इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो चीजें आपने यूज कर ली हैं उनको इमीडिएटली यू डिस्कार्ड इन द एप्रोप्रिएट डिस्कार्डिंग बिन, जिसके अंदर आपने 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डाल के रखा हुआ है उसमें डिस्कार्ड कर दें, सो दैट आपके पास E4 वाली जो एरर है वो ना आए। तो इसलिए आप उसको क्या करना है, यूज्ड कार्ट्रिज को डिस्कार्ड कर देना है और आपको नया कार्ट्रिज यूज करना है, तो आपकी E4 एरर विल बी टेकन केयर। नेक्स्ट, E5 जब होती है तो ये होता है आपका E5 की एरर होती है जब आपने एक्सपायर्ड कार्ट्रिज को यूज कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वैसे तो जनरली आपको हम बता के आते हैं जब भी किसी भी लैब में जाते हैं कि आपको कार्ट्रिज को यूज करने से पहले देखना है कि इसकी एक्सपायरी क्या है, और वैसे भी हम बोलते हैं कि आपको फीफो फॉलो करना है। फीफो फॉलो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, मतलब कोई भी कार्ट्रिज आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपको जिनकी एक्सपायरी पहले है उनको पहले यूज करना है, अभी है उनको आपको यूज करना है। तो इसीलिए E5 एरर जब आपके पास आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक्सपायर्ड कार्ट्रिज यूज कर लिया, इसका मतलब आपकी लैब में आप फीफो को फॉलो नहीं कर रहे हो। इसीलिए जब भी IRL जो है अपनी किसी भी नेट साइट पे जाएंगे तो वो देखें कि E5 एरर अगर उनके पास आ रही है तो कितनी आ रही है, और E5 एरर अगर आ रही है तो ट्राई टू फाइंड आउट के ये फीफो नहीं फॉलो कर रहे हैं या कंपनी वाले ने ही इनको एक्सपायर्ड कार्ट्रिज इशू किए हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दिस E5 एरर, ये आपको नंबर ऑफ एरर्स नोट करके लानी है और इसको रिपोर्ट भी करना है। नेक्स्ट, E6 जब आता है तो दैट मीन्स क्या है कि कार्ट्रिज जो है वो लोड ही नहीं करा आपने, मीन्स प्रॉपरली लोड नहीं करा, करेक्ट ओरिएंटेशन में लोड नहीं करा आपने, उसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में उल्टा लोड कर दिया तब भी आपके पास E6 आ जाएगी। और अगर ऐसी एरर आती है तो आप उसको ठीक से ठीक ओरिएंटेशन के हिसाब से उसको लोड करिए, और अगर फिर भी दोबारा आती है तो आपको मॉल बायो को कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट, E14 जब एरर आती है तो दैट मीन्स इसमें क्या है कि इल्यूशन की एरर है। इल्यूशन की एरर क्या है कि आपका इल्यूट ही नहीं आ रहा, इल्यूट जब नहीं आ रहा तो दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं या तो ब्रेकेज है कार्ट्रिज के अंदर या उसमें वो क्रैक हो गया है, ताकि आपका जो इल्यूट है वो वहां से लीक हो रहा है, तो उसको आप नया कार्ट्रिज यूज करना पड़ेगा और फिर से सारी प्रोसेस दोबारा से करनी पड़ेगी। जो आपका लाइसिस बफर डाल के लिक्विफाई करके सैंपल रखा हुआ है उसको नया कार्ट्रिज लेके उसके अंदर लोड करें और दोबारा से लगाएं, तो फिर आपका एल्यूट ठीक से आएगा। और अगर ये प्रॉब्लम आपकी दोबारा रिपीट होती है तो फिर आपको मॉल बायो को कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट, E15 एरर जो है वो क्या है, इसमें कार्ट्रिज क्लॉग्ड है, इसमें भी क्या होगा, इल्यूशन जब नहीं आ रहा E15 है तो दैट मीन्स क्लॉग हो गया आपका, उसकी जो पाइप्स हैं वो क्लॉग्ड थी। तो वो भी क्लॉगिंग भी कब होती है, जब आपने ठीक से लिक्विफाई नहीं करा, इसको भी आपको दोबारा नए कार्ट्रिज के साथ में रिपीट करना पड़ेगा। और अगर दोबारा रिपीट होती है, नेक्स्ट कर दो, रिपीट होता है तो दोबारा आपको फिर से मॉल बायो को कांटेक्ट करना है। E7 जब आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सपायर्ड कार्ड लगा दिया, जब आपने रीसेटिंग तो करी कार्ड की बट गलती से आपने पुराना कार्ड फिर से लगा दिया। इसीलिए प्लीज आप जब भी कोई चीज यूज कर ली है उसको अब आपको दोबारा यूज नहीं करना है, तो पुट इट इन द डस्टबिन, प्रॉपर डस्टबिन, डिस्कार्डिंग बिन, जिसमें भी आपको डालना है उसमें डाल दें। E7 अगर आ रहा है तो दैट मीन्स आपने एक्सपायर्ड वाला जो कार्ड है वो यूज कर लिया, इसलिए आप उसको नया लेंगे और फिर से रीसेट करेंगे कार्ड को तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, E8 जब होती है ये भी सेम ही होता है कि आपने यूज्ड को कर लिया या उसको सेटिंग ठीक से नहीं करी, तो ये E7 और E8 सेम एरर होती है। नेक्स्ट, E9 और E10 जो है ये भी इनवैलिड कार्ड है, या फिर ठीक से रीसेट नहीं हुआ आपका, तो ये जब आती हैं आपकी प्रॉब्लम्स E9 और E10, इसके लिए आपको मॉल बायो को ही बुलाना पड़ेगा, ये आपसे सॉर्ट आउट नहीं होगी। नेक्स्ट, E11 एंड E12 भी जब भी आपके पास आती है एरर, तो ये क्या है कि आपकी RTDL एरर कहते हैं इसको, तो कि आपका जो हीटर है उसके अंदर एक हीटर होता है,
लाइसिस हीटर जो आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते अपने लेवल पे। ये अगर E11 और E12 आती है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मॉल बायो के साथ, उनका इंजीनियर ही आकर के उसको चेक करेगा। नेक्स्ट, E13 अगर आती है तो क्या है कि सेल्फ टेस्ट, मशीन अपने आप को अभी सेल्फ टेस्ट करती है ना कभी बीच बीच में वो सेल्फ टेस्टिंग करती है। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन अपना प्रेशर जो होता है वो चेक करती है, इजेक्शन वगैरह होती है या एग्जिट वगैरह होती है उनको चेक करती है। अगर वो सेल्फ टेस्ट करने में फेल हो गई अगर, तो E13 आ जाएगा, दैट मीन्स योर इक्विपमेंट इज नॉट वर्किंग फाइन। और इसमें आप खुद कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मॉल बायो वालों को ही बुलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, और जब आपके पास W1 मीन्स वार्निंग आती है, वार्निंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, इक्विपमेंट आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप कोई भी उसका बटन दबा रहे हो या उसको कोई कमांड दे रहे हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपको मॉल बायो वालों को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये आप अपने आप से नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वार्निंग 2 जब आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो मशीन है वो आपके कार्ट्रिज को रीड नहीं कर पा रही, रीड नहीं कर पा रही, मतलब वो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द मशीन, इसके लिए भी आपको मॉल बायो को कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट, W3 जब होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बैटरी जो है वो चार्जिंग पूरी नहीं हुई हुई। W3 अगर आती है तो वार्निंग देता है ये आपको कि आपकी बैटरी लो है इक्विपमेंट की, वो आपने फुली चार्ज नहीं करी है, इसलिए आपका टेस्ट जो है वो इनकम्प्लीट बीच में बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसको कनेक्ट कर देना चार्जर के साथ में। और वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि टेस्ट शुरू करने से पहले ही आप उसका बैटरी का स्टेटस चेक करें। जिस तरह से आप रोज अपना फोन जो है सुबह घर से निकलने से पहले चार्ज करते हो और चेक करते हो कि 100% बैटरी है कि नहीं है, उसी तरह से आपको टेस्ट शुरू करने से पहले उसकी बैटरी का स्टेटस चेक करना है। नेक्स्ट, अब ये अगर पीसी, ये सारी जो अभी तक हमने एरर्स पढ़ी हैं वो ट्रू प्रेप लैब में है, जिसमें आपको डीएनए आइसोलेशन करते हो, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हो, उसकी एरर्स पढ़ी हैं। और अगर हम पीसीआर एनालाइजर है जो कि आपके पास मशीन होती है, जो कि यूनो है, डुओ है, क्वात्रो है, जिसके अंदर आप पीसीआर होता है, उनके अंदर क्या होता है, रियल टाइम पीसीआर होता है, उनकी अगर आप बात करते हो तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की एरर आती हैं। उसमें एरर 1, एरर 2, 3, 4, 5, 8 एंड इनवैलिड आता है। एरर 1 अगर आ रहा है तो थर्मल साइकिलिंग की एरर है, मींस उसके अंदर जो थर्मल साइकिलर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। एरर 2 जो है वो तब आती है जब आपने गलती से आपका टेस्ट जो है मैनुअली आपने स्टॉप कर दिया, मींस या तो लाइट चली गई, लाइट जाने से वैसे होना नहीं चाहिए, बट आपने अगर चार्ज नहीं किया हुआ था इक्विपमेंट और आपने उसी टाइम चार्जिंग पे लगाया था और फिर करंट चला जाता है तो आपकी एरर 2 आ जाएगी। या गलती से आपसे मेन स्विच कहीं से ऑफ हो गया जहां से करंट आ रहा था तो आपका टेस्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, तो उसको एरर 2 दिखा देगा। एरर 3 का मतलब क्या होता है कि इनकरेक्ट ऑप्टिकल प्रोफाइल, मींस उसका जो ग्लास स्लाइडर है वो ठीक से ऑप्टिकल उसका जो रीडिंग लेता है वो क्लियर नहीं है, तो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। और एरर 4 जब आता है तो रन टाइम एरर है, मींस उसका प्रॉपर टाइम तक आपने रन नहीं किया, उसको टेस्ट को बीच में से स्टॉप कर दिया। एरर 5 क्या होता है, प्रोब चेक एरर। तो एरर 5 जो है वो मशीन के अंदर प्रोब होती है ना जो उसको चेक करती है, उनकी एरर होती है। और एरर 8 जो होती है वो कंट्रोल प्रोब जो होती है उसके अंदर जो रन होती है, जो हम आपको बताते हैं ना कि आपके कंट्रोल प्रोब्स होती हैं जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, तो उनकी एरर है। और इनवैलिड का मतलब होता है कि आपका जो पीसीआर है वो एम्पलीफाई नहीं हुआ। एम्पलीफाई क्यों नहीं हुआ कि कोई या तो मशीन में प्रॉब्लम है या आपका सैंपल का एक्सट्रैक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ था। तो एरर 1, 2, 4, 5 एंड 8 के लिए आपको क्या करना है, फ्रेश चिप यूज करनी है, दोबारा से रीलोड करना है और फिर से आपको रिपीट बटन दबाना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आपका इनवैलिड आ जाता है तो आपको सेम एल्यूट को आपको अनदर चिप लेकर के, सेम एल्यूट लेकर के आप दोबारा से टेस्ट को रिपीट कर सकते हो। बट अगर दोबारा रिपीट करने से भी आपको सेम ही प्रॉब्लम सामने आती है तो उसके लिए आपको मॉल बायो वालों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
ये सारियां वही हैं, एरर 1 ये मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, ये सारियां एरर्स हो चुकी हैं, ये सब हो चुकी हैं। ये होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आई वॉज क्लियर इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो काइंडली लेट अस नो, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू क्लैरिफाई। Thank you, Dr. Niti ma'am. Now I would like to invite Dr. Preeti Bala, microbiologist IRL Karnal, for case presentation. Over to you, Dr. Preeti Bala. Good afternoon, sir, ma'am. Good afternoon. Good Good afternoon to all respected faculty members and colleagues. My name is Dr. Preeti Bala, and I'm working as a microbiologist at IRL Karnal under NDP. Preeti, may I request you to kindly switch on your video so that everybody can see you? Ma'am, actually, there is a little bit problem with our camera, Okay. Okay. No issue. No issues. Can continue. but we are trying, ma'am. Okay. Okay. It's a great privilege to present this case today during the Eco Platform session organized by NITRD of Delhi. The aim of this presentation is to highlight the laboratory perspectives, challenges, and key learning points associated with this case. And I hope this presentation will be useful for all of us in improving patients' care and strengthening diagnostic practices. Actually, before preparing this case presentation, we conducted an online survey across all TrueNut sites in Haryana, ma'am. And we collected feedback from the technicians and lab staff and STLS and documented the common issues they are facing during the routine testing. Based on the survey finding, we identified key problems areas and selected this particular case for today's presentation. And as it reflects one of the most relevant challenges observed across the multiple sites. So now, with your permission, I would like to begin the case presentation, ma'am. Yeah, sure. Thank you so much, ma'am. Ma'am, this is a case presentation. Carry on, Dr. Preeti. Okay, ma'am. Okay, Yeah. ma'am. This is a case presentation, TrueNut preventive maintenance and troubleshooting impact on result quality. Next slide, please. Next slide, please. Next. इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहा मैम? हमारे पास एक जैसे एक साइट थी ट्रूनाट की, ड्यूरिंग द रूटीन टेस्टिंग मल्टीपल रिजल्ट्स आर कमिंग एज इनवैलिड। मतलब बार बार जो हमारे टेक्नीशियन थे वहां पर रिक्रूटेड थे, ट्रेन थे, सब उनका काम बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी इनवैलिड रिजल्ट्स हम ले रहे थे उनके बार बार से। तो 5 सैंपल्स इन अ सिंगल डे तक भी इनवैलिड आया जा रहा था उनका। तो टेक्नीशियन रिपीटेड द टेस्ट बट इनवैलिड रिजल्ट्स फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू, क्योंकि वो उस सैंपल से भी रिपीट करते, नए फ्रेश सैंपल से भी करते, लेकिन उनके रिजल्ट्स इनवैलिड आ रहे थे। इनिशियल ऑब्जर्वेशन की गई कि जो कार्टिलेज है, जो हमारा कार्ट्रिजेस इंसर्टेड प्रॉपर्टी हो रहा है, हाँ प्रॉपर्ली था। सैंपल वॉल्यूम भी बिल्कुल करेक्ट था। पिपेटिंग टेक्निक भी हम उसकी चेक की गई, टेक्नीशियन की, एसटीएलएस ने अपने ऑब्जर्वेशन में करवाई, सीनियर्स के सामने भी पिपेटिंग करी गई, तो वो भी बिल्कुल सही थी। नो विजिबल डस्ट और मॉइस्चर मशीन में बिल्कुल भी नहीं था, बट स्टिल रिजल्ट उसके इनवैलिड ही आ रहे थे बारंबार। नेक्स्ट। ट्रबल शूटिंग स्टेप स्टार्टिंग से भी चेक किया गया कि ऐसा क्या है कि हमारे पास उनके इनवैलिड रिजल्ट्स एकदम से बढ़ गए हैं, क्योंकि वो टेक्नीशियन का काम भी अच्छा था और डीएमसी का नाम भी अच्छा था, फिर भी इनवैलिड रिजल्ट्स आए, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न बन गया सबके लिए। तो फर्स्ट सबसे पहले चेक किया गया कंज्यूमेबल्स, एक्सपायरी उनका ओके था, वो मतलब विद इन एक्सपायरी डेट ही थे सारे। और वेरीफाई सैंपल क्वालिटी, दैट वाज एडिक्वेट, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी वाज गुड। चेक किया गया टेम्परेचर लोग, टेम्परेचर जो लैब का था फ्लक्चुएटिंग था 30 to 34 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हमने चेक किया कार्ट्रिज स्टोरेज बॉक्स, उसमें देखा कि जो डेसिकेंट पाउच वाज कंप्लीटली वाइट, उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रखा था अच्छे से, तो रिप्लेस किया स्टोरेज डेसिकेंट को। फिर हमने देखा कि उसमें जो हमारी इंप्रूवमेंट है वो ऑब्जर्वेबल थी। नेक्स्ट स्लाइड।
तो रूट कोज हमने देखा कि सारे प्रोसीजर में क्या पाया गया कि इनवैलिड रिजल्ट्स आ रहे थे, सब उसने टेक्नीशियन ट्रेन था, उसकी मशीन पे भी कोई डस्ट नहीं था, सारे स्लॉट्स भी बिल्कुल सही थे, कैलिब्रेटेड था सब कुछ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कहाँ थी ये पाया गया कि हाई मॉइस्चर एक्सपोजर ड्यू टू एक्सपायर्ड डेसिकेंट पाउच। जो डेसिकेंट पाउच था वो बिल्कुल सफेद हो चुका था ब्लू से। जो कार्ट्रिजेस ने क्या किया, सबने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रखा था, जो चिप रीडिंग फेल होए जा रही थी, जिस वजह से हमारे जो रिजल्ट थे वो इनवैलिड आ रहे थे। तो करेक्टिव लिए गए, रिप्लेस करा गया डेसिकेंट पाउच को, जल्दी से शिफ्ट करा गया, शिफ्टेड कार्टेज बॉक्सेस अवे फ्रॉम द विंडो सनलाइट, मेंटेन रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एजुकेट किया सारे स्टाफ को बुला के कि ये छोटी छोटी चीजें एक्चुअली क्या है कि बड़ी बड़ी चीजों में उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया, टेक्नीशियन ने सारी लॉग शीट्स मेंटेन की। सिर्फ एक छोटी सी गलती उनसे क्या हो रही थी कि उन्होंने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि जो उनकी जो किट्स है, जो पाउच है, उसके अंदर जो डेसिकेट पाउच पड़े हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। फिर उनको एजुकेट किया गया स्टाफ को कि अगर इसका ब्लू पाउच आपको दिखाई देगा, इट मींस इट्स इन गुड कंडीशन, यू कैन यूज इट। और अगर ये पिंक या व्हाइटिश कंडीशन में जा रहा है तो प्लीज इसको रिप्लेस कीजिए, इससे आपके जो रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी, इनवैलिड रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रिजल्ट्स हमने बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर किया। तो हमारे स्टार्टिंग में 5 इनवैलिड्स पर डे आ रहे थे जब हमें रिपोर्ट हुआ। तो जब हमने एक्शन किया, ये सारा डेसिकेंट पाउच को हमने रिप्लेस करने के लिए बोला और किया, तो हमारे पास 0 इनवैलिड नेक्स्ट डे से आना स्टार्ट हुआ। तो टेस्टिंग जो थी, पहले क्या था, जब हमारे पास इनवैलिड आ रहे थे तो वो उसी चक्कर में हमारा टेक्नीशियन फंस रहा था कि पहले क्या था, उसके बाद सैंपल आया, उसने टेस्ट किया इनवैलिड, फिर उसने उस सैंपल से फिर किया, फिर इनवैलिड, नया भी मंगाया, फिर भी इनवैलिड। तो फिर ये क्या हो रहा था कि टेस्ट में डिले हो रहा था, पेशेंट को रिपोर्ट में डिले हो रहा था, हर चीज में डिले चल रहा था। लेकिन जब हमने ये चेंजेस किया तो हमारा जो रिपोर्ट था वो टाइमली इशू होना शुरू हो गया। और जो इस वजह से क्या होता था, पेशेंट की एंग्जाइटी बढ़ रही थी, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट आता था कि मेरी रिपोर्ट हो गई है, मेरी रिपोर्ट ऐसी कैसी मेरी रिपोर्ट है कि डिस्कशन नहीं हो रहा, फिजिशियन के पास मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, बिकॉज इनवैलिड रिजल्ट को लेके पेशेंट समझ में नहीं पाता है कि भी मैं पॉजिटिव में जा रहा हूँ, नेगेटिव में जा रहा हूँ। तो उसका मेंटल स्टेट भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में जा रहा था, क्योंकि उनकी एंग्जाइटी बढ़ जा रही थी कि भी या तो मैं पॉजिटिव हूँ, या तो मैं पीबी है या नहीं है, इनवैलिड क्या होता है। इस वजह से पेशेंट की एंग्जाइटी बढ़ रही थी। लेकिन जब हमने इसका करेक्टिव मेजरमेंट्स लिए तो स्मूथ वर्क फ्लो हुआ। जो हमारा टेक्नीशियन है, अब उसके पास भी बर्डन कम हुआ, काम का बर्डन कम हुआ, प्लस जो पेशेंट्स आते थे उनके साथ उसको 1 to 1 कम्युनिकेट करना पड़ता था, उसको उनको सूदिंग फैक्ट देना पड़ता था कि नहीं तुम्हारी रिपोर्ट आएगी, हम कर रहे हैं। उस चीज में जो टाइम लगता था, टाइम की वेस्टेज हो जाती थी इन चीजों से, उनमें भी उसको राहत मिली टेक्नीशियन को। और जो पेशेंट था उसका हमारे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बढ़ा, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और हमारी लैब के ऊपर, टेक्नीशियन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर उसका फेथ बढ़ा, और स्मूथ वर्क फ्लो हमारा चला इस एक्शन को लेने के बाद। और जो कार्ट्रिज की ऑब्वियस है, जो हमारी इतनी वेस्टेज हो रही थी ये एक्शन लेने के बाद, वो जो हमारी वेस्टेज थी कार्ट्रिजेस की, वो भी काफी हद तक रिड्यूस हुई। नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हमें क्या लेसन मिला इन सब चीजों से? टाइनी कंज्यूमेबल डेसिकेंट पाउच कैन क्रिएट मेजर एरर्स इफ इग्नोर्ड। हमने इतना छोटा सा था, कई बार पहले हम भी ये देखते थे कि हाँ दिस इज हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द पाउच, हम कहते थे कि हाँ इसका ये फंक्शन है, दैट्स इट। लेकिन इस वजह से हम इतने ज्यादा चक्कर में फंस जाएंगे कि हम इनवैलिड के घेरे से निकल ही नहीं पाएंगे। ये मतलब इस केस स्टडी के बाद क्लियर हुआ हमें कि ये छोटा सा डेसिकेंट पाउच था और इसने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। तो मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेंटेनेंस इज नॉट ओनली मशीन केयर, इट इज रिजल्ट क्वालिटी केयर एंड पेशेंट केयर। जिस वजह से हम ये काम करने लग रहे हैं, मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं, रन सारे क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, गुड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसका फायदा हमारे को तभी होता है जब रिजल्ट क्वालिटी केयर एंड पेशेंट केयर के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो कंक्लूजन इस पूरे केस का हमारे पास मिला के, सबसे पहले तो ये डेसिकेंट पाउच, हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, प्रीवियस करना प्लीज। डेसिकेंट पाउच के ऊपर हम इतना चर्चा नहीं कर पाए थे, तो फिर उस टेक्नीशियन के साथ, एसटीएलएस के साथ मिलकर हमने
पूरा लेक्चर इसका डिजाइन किया कि डेसिकेंट पाउच है क्या, इन द TrueNAT kit is a moisture absorbing packet that helps to protect reagent, और it contains drying agents like a silica gel वगैरह, and that absorb the humidity inside the kit box, उसको समझाया गया. This is important because TrueNAT reagents are sensitive to moisture and excess humidity can reduce their performance and damage the cartridge, and ये सारी चीजें उनको समझाई गई. The desiccant ensure that the kit remains dry, stable, effective until it expiry. Expiry date हम चेक कर रहे थे, वो सब कुछ विद इन एक्सपायरी था, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम आ रही थी. तो ये चीज उनको समझाएगी कि दिस desiccant ensure that the kit remains dry, stable, effective until its expiry. If the desiccant changes color or appears saturated, it indicates that moisture has entered and the box and the kit may not be safe to use. क्योंकि हम अगर बार बार उसी को यूज करे जा रहे हैं, रिजल्ट हमारा बनेगा नहीं, कार्ट्रिज की वेस्टेज, पेशेंट को एंजाइटी होगी, हमारा खुद का वर्क फ्लो और बर्डन बढ़ता ही चला जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. कंक्लूजन क्या निकला हमारे पूरे इस केस को स्टडी करने का, डिस्कस करने का, फीडबैक लेने का, देने का, उनका प्रोग्नोसिस चेक करने का, सब चीजों का क्या कंक्लूजन निकला? दिस केस डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड टाइमली ट्रबल शूटिंग आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग रिलायबल TrueNAT रिजल्ट अंडर एनटीपी. मतलब ये सारी चीजें हमें ये समझ में आएगा, मेंटेनेंस और टाइमली ट्रबल शूटिंग करना, ये सब हम करेंगे तभी हम एनटीपी के अंडर TrueNAT के बढ़िया रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं, फिजिशियन को, जिससे हमारा जो पेशेंट है वो सफर नहीं करेगा और आगे ये चेन बढ़ने से टीबी की हमें राहत मिलेगी. नेक्स्ट नोट ये रहता है कि रिलायबल डायग्नोसिस बिगिंस विद रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस. रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस किस किस की ड्यूटी है? हर किसी की ड्यूटी है जो एलटीयू टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, या जो स्टोर कीपर जो उन किट्स को स्टोरेज रख दे रहे हैं, उनको कैसे स्टोर किया जा रहा है, ह्यूमिडिटी है नहीं है, टेम्परेचर आपका कितना है जहां पर आप उस किट्स को रख रहे हो, उन किट्स के ऊपर कोई फंगल एलिमेंट्स तो नहीं आ गए हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको उसको चेंज करना है. पाउच को आपने जब भी खोल रहे हैं उसको पहले आपने चेक करना है चेकलिस्ट से कि हाँ हाँ ये पॉइंट्स है, मैं तब स्टार्ट करूंगा अपना टेस्ट जब मेरे पास ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी. तो मतलब रिलायबल डायग्नोसिस बिगिन ही तब होगा जब हमारे पास विद रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस. तो ये सब रहेगा तभी हमारे रिजल्ट्स बढ़िया रहेंगे. Next, thank you all for your time and attention, ma'am. I am grateful to the respected faculty from NITRD Delhi and to everyone present on the ECO platform today. Thank you for giving me the opportunity to share this case, ma'am. I'm really obliged, and I look forward to your suggestions and feedback, ma'am. Thank you so very much, ma'am. Thank you, Dr. Preeti Bala, for a nice case presentation. Thank you, sir. Thank you so much. We have some suggestions. So actually जब आपको लग रहा था कि ये इनवैलिड्स आ रहे हैं, आपने रूट कॉज एनालिसिस की, उसके बाद करेक्टिव एक्शन भी लिया, उस टाइम पे ना आप 5 सैंपल्स जो वेल नोन सैंपल्स थे ना उनको रन करा के देख सकते थे, उसी टाइम पता चल जाता कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. सर एक्चुअली जब हमारे पास ये केस प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी आई, उसके बाद हमने सर्वे कंडक्ट किया, फिर सारी सबकी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट किया, तो उसके बाद हमें ये जज किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हमने करेक्टिव मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए. तो मैं इसीलिए आपका रियली थैंकफुल करती हूँ कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, जिससे हमें या जहां पर भी प्रॉब्लम्स थी वो 1-to-1 कम्युनिकेट हमसे कर पाए, हमने उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया और उन तक ये पहुंचाया. थैंक यू. So in addition to this, I would like to re-emphasize and would like to request to all IRLs that they should train, retrain and retrain their staff in their particular state, number one. Number two, whenever they are going for the on-site evaluation of different NAT sites, they are supposed to check कि कहाँ पर वो क्या स्टोर कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, छाया में कर रहे हैं, कौन से टेम्परेचर पे कर रहे हैं, अपसाइड डाउन तो नहीं रखे हुए हैं कार्ट्रिजेस वगैरह, उनके कार्टन वगैरह जो हैं. They should visit the storage facility also where they are storing the kits.
ये प्लीज आप दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे। तो ये वाली चीज जो अभी आप डॉक्टर प्रीति बाला ने बोली कि उन्होंने अपनी स्टेट में फेस करी, तो ये आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसलिए प्लीज आप ध्यान रखिए, एक तो ट्रेन करिए, रीट्रेन करिए, बार बार ट्रेन करिए। जिस बंदे को नहीं समझ में आ रही है उसको दोबारा बुलाइए आईआरएल में और उसको ट्रेन करिए। एंड दूसरा, आप जब ऑन साइट इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं तो प्लीज देखिए कि उन्होंने प्रॉपर स्टोरेज किया हुआ है कार्ट्रिजेस का और चिप्स का या नहीं। थैंक यू सो मच। So, participants are requested to attend the post test. So I will include Link is available in your chat box. Now, participants are requested to ask questions about this section. So, I will include something. please. So, good afternoon to all of you, and I will include in this case presentation. And thank you, Dr. Preeti. You nicely presented the case presentation from State Haryana. Thank you so much. So I will include some little things in your presentation. Okay, you will increase your own site evaluation, and not you means STLS. The frequency of on-site evaluation of STLS is monthly to their TrueNet or CBNet or microscopy centers. So STLS हर महीने विजिट करें, और जो भी विजिट कर रहे हैं वहां पे तो उस समय ही एरर्स को डिटेक्ट कर लें। ये ऐसा ना हो कि आपके पास में, क्योंकि आप तो किसी डिस्ट्रिक्ट को वंस इन अ ईयर ही विजिट कर पाएंगे, तो एसटीएलएस को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है इसमें कि एवरी मंथ दे आर विजिटिंग देयर रेस्पेक्टिव डायग्नोस्टिक सेंटर मींस टीबी डिटेक्शन सेंटर, तो वो उसी समय अपना विजिट करें। और अगर इस तरह का एरर आ रहा है तो वो अपना स्टेट से उसे डिस्कस करें ताकि इसमें डिले ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास आने में इसे मंथ 2 मंथ और 3 मंथ भी लग जाए कि इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। दूसरा बात ये कि अगर आप एसटीएलएस विजिट करें, चाहे स्टेट लेवल पे विजिट की जा रही है अपना साइट्स की, तो वहां पे जाके स्टोरेज का तो देखना ही है, प्लस ये भी देखें कि उन्होंने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उन्होंने मेंटेन किया या नहीं किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर सजेस्ट करें अपने विजिट में। तो वहां पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लॉग्स यानी कि वो दिन में अपना उसे 2 बार मेंटेन करेंगे, जो भी साइट पे ट्रूनेट मशीन है या सीबीनेट मशीन है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि वो दे विल मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन ऑन डेली बेसिस। और अगर एसटीएलएस जा रहे हैं या स्टेट लेवल पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जा रहे हैं तो दे विल एसेस कि दे एंटायरली मेंटेन दिस एक्टिविटी और नॉट, क्योंकि जब नो डॉक्यूमेंटेशन तो मींस नो एक्टिविटी परफॉर्म एट देयर साइट लेवल। तो अगर वो मेंटेन कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंटेड भी करें इस एक्टिविटी को, तो ताकि वो एज अर्लीस्ट हमें पता लग जाए और फिर टाइमली किसी भी लेवल पे इसे हम रिजोल्व कर सकें। तो सभी के लिए यही सजेशन रहेगा, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, चाहे टीयू लेवल पे एसटीएलएस हूं, चाहे स्टेट लेवल पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं। तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और बाकी मैडम ने ऑलरेडी अच्छे से बता ही दिया कि ट्रेनिंग का आप जरूर ऐसा शेड्यूल कर लें कि आपके पास में एवरी मंथ इंडिकेटर्स रिसीव हो रहे हैं, जहां पे लग रहा है कि ज्यादा एरर्स आ रहे हैं, इनवैलिड आ रहे हैं, तो उनका एक अपना सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करें। आप अपने लेवल पे कर लें या हमें भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। तो मेरा यही सजेशन रहेगा सभी के लिए, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी हमारे नाट साइट से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। Now, floor is open for any question. और कोई क्वेरी Question and चैट query. बॉक्स में भी मैसेज में भी लिख सकते हैं। वी विल सी फ्रॉम द You can ask and you can. क्वेश्चंस भी पोस्ट नहीं, वो कर देंगे अपने आप। वो तो कर दो. Any question? Good morning, sir and madam. I am Rashmi from AIMS IRL, ma'am. Yes, sir. Okay. हेलो रश्मि। कैसे हो, मैम? मैं ठीक हूँ। अच्छे। मैम, मैं भी एनडीएमसी और नेहरू नगर का विजिट कंप्लीट किया दिसंबर में। या मैम, बहुत साइट पे मैंने देखा कि इंडिटर्मिनेट जो ट्रूनेट से आ रहे हैं उसे सीबीनेट से वो लोग रिपीट कर रहे हैं मैम।
क्या ऐसा कोई गाइडलाइन दिल्ली में है क्या मैम? नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, बिकॉज सीबीनेट एंड ट्रूनेट सेम ही है, दोनों की टेक्नोलॉजी भी सेम है, दोनों ही सेम चीज ही करती हैं, एमटीबी डिटेक्शन प्लस रिफाटा स्टेटस बताती हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, ट्राई टू टेल देम। आइडियली तो एक्चुअली एक ही साइट पे ट्रूनेट एंड सीबीनेट दोनों होना ही नहीं चाहिए, बट अभी कुछ कुछ लैब्स में अभी उनको रीलोकेट करेंगे, इसलिए अभी दोनों मशीन पड़ी हुई हैं। प्लीज उनको समझाइए कि ऐसा नहीं करना है, जी मैम, क्योंकि हम डबल द रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी। मैंने सजेस्ट करा कि इंडिटरमिनेट को रिपीट करना तो सेम टेक्निक से करें, चाहे वो Yes. सीबीनेट में हो तो सीबीनेट Yes. से करें, ट्रूनेट से है ट्रूनेट से करें। हाँ हाँ। और कहाँ पे बताया आपने? डीडीयू नेहरू नगर, और कहाँ पर? एनडीएमसी का मैम। एनडीएमसी, ठीक है। और दूसरी चीज मैम कि इंडिटरमिनेट यदि रिपीट के भी बाद आते हैं तो आईआरएल को सैंपल भेज सकते हैं फॉर फर्दर। यस, अगर आपने एक बार टेस्ट करा, उसमें आपके रिजल्ट जो है ठीक से नहीं आए, आपने एक बार फिर से रिपीट किया, फिर भी आप कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं ले पाए, तो थर्ड सैंपल शुड गो टू द आईआरएल। तीसरी बार उनको नेट साइट पे रिपीट नहीं करना है, उसको आपको पहले जो रिजल्ट आए हैं आपके पास में उनका रिजल्ट लिख करके कि हमने फर्स्ट टाइम जब टेस्ट लगाया था तो ये रिजल्ट आया था, सेकेंड टाइम टेस्ट लगाया तो ये रिजल्ट आया था, इसलिए थर्ड सैंपल हम आपको आईआरएल में भेज रहे हैं, प्लीज गिव अस द सोल्यूशन, देन दे विल परफॉर्म द टेस्ट एंड गिव यू द आंसर। मैम यही चीजें मुझे रखनी थी क्योंकि अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, होपफुली दिल्ली के भी होंगे, एसटीएलएस भी होंगे, एलटी भी होंगे, तो इसलिए मैंने इसे पुट ऑन किया चीजों को कि ये क्लियर हो सके। यस, अभी मैं आपके साथ में ऑन साइट इवैल्यूएशन के लिए जा रही हूँ ना, दिसंबर में जब आती हूँ, तो आप मुझे तब दोबारा से रिमाइंड करा देना, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट विद देम एंड कैन मेक देम अंडरस्टैंड। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। Any other question, please? So now we would like to summarize the session. Yes. So जैसे मैडम ने सारा कुछ बताया सेशन में, सो फॉर टू समराइज, रेगुलर मेंटेनेंस इज द की। सो मेंटेनेंस, जब भी हम जाते हैं आपसे लॉग शीट बार बार मांगते हैं कि लॉग शीट दिखाओ, लॉग शीट देखने का पर्पज ही है कि आप मेंटेनेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अधिकतर साइट्स बोलती हैं हम कर रहे हैं, तो हम कैसे इंश्योर करें कि आप कर रहे हो नहीं, तो उसके लिए लॉग शीट होना जरूरी है। प्रॉपर लॉग शीट्स आप फिल करिए। एंड प्लीज ऐसा भी नहीं करना, जब वेन एवर आई गो टू डिफरेंट साइट्स एंड आई आस्क फॉर द लॉग शीट, तो वो दिखाते हैं मुझे लॉग शीट, बट आई कैन मेक आउट कि वो लॉग शीट आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता था कि एनआरएल से टीम आ रही है, एक ही दिन में बैठ के पूरे महीने की भर दी, विच वी कैन इजीली मेक आउट कि आपने एक दिन में भरी है या रोज रोज भरी है। ऐसा नहीं करना। लॉग शीट का मतलब ये नहीं है कि आपकी कंप्लीट होने का मतलब काम खत्म हो गया। लॉग शीट आपको दिखाती है कि आप मशीन को कितने प्रेम पूर्वक मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आपको रोज चेक करना है, रोज उसमें लॉग शीट में भरना है, ना कि ये कि एक ही महीने की एक साथ भर दिया आपने क्योंकि टीम आ रही है। ऐसा नहीं करना है। और आपको पावर चेक, सप्लाई चेक करनी है, बैटरी चार्ज है कि नहीं है, जैसे मैडम ने बताया। कीप द मशीन इन ए डस्ट फ्री, ड्राई एंड स्टेबल एनवायरनमेंट। हमने देखा है अधिकतर मशीन्स को ना ऐसे ही उल्टा पुल्टा ऑब्जर्व किया है, कुछ उसके नीचे रखा हुआ है वहां पे रख दिया, या अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रख दिया, सो ये कैलिब्रेशन और उसको डिस्टर्ब करता है, कभी कभी इससे रिजल्ट भी डेविएट हो सकते हैं। सो हमेशा उसको स्टेबल एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म पे रखना है। ग्रेनाइट का टेबल प्लेटफॉर्म हो तो ज्यादा बेटर है, टेबल्स पे रखना सही नहीं है, और टेबल भी कभी कभी अनस्टेबल होती है काफी ज्यादा। सो इस तरह की एनवायरनमेंट में इसको नहीं यूज करना है। फॉलो प्रॉपर सैंपल कलेक्शन, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा एक साइड पर डिटेक्ट हो रहा है, दूसरी पर नहीं डिटेक्ट हो रहा, तो जब सैंपल ही सही नहीं होगा, सुबह डिटेक्शन हो रहा है शाम को नहीं हो रहा, कभी डुप्लीकेट सैंपल दे देता है पेशेंट। तो सो ये ध्यान रखना है। दूसरा, लोडिंग जो कर रहे हो आप, लोडिंग भी प्रॉपर करना है। बहुत छोटा अमाउंट 6 माइक्रोलीटर हम लोड करते हैं, सो प्रॉपर देखना है कि 6 माइक्रोलीटर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो केयरफुली लोडिंग का भी ध्यान रखना है। मॉनिटर टेम्परेचर कंडीशन,
हमें किस एनवायरनमेंट में रखना है किस कार्टेज को, और कहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ज्यादा हीट वाले जगह पे यूज करेंगे मशीन को या कोल्ड। हम देखा है कि जहाँ पे स्नोफॉल और ये हो रहे होते हैं वहां पे अगर आप यूज करोगे तो एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा, आपको 30 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। सो अधिकतर जगहों पर हीटर्स और ये लगे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट रहता है। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में यूज नहीं करोगे मशीन को, तो आपके एरर्स एंड इनवैलिड्स और इंडिटरमिनेट्स हाई हो सकते हैं। दूसरा, हैंडल एरर्स कोड सिस्टमेटिकली। तो जैसे मैडम ने एक एक एरर को बताया, ये सारा जब साइट पे हम जाते हैं तो सामने आपके रहना चाहिए। साइट्स पे पता ही नहीं होता E1 क्या है, E2 क्या है, ये कहीं पे नहीं पता होता। उसके साथ ट्रबल शूट, ये सारा एक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है मॉल बायो में, और नहीं है तो आप कहीं से भी साइट से लेके इसको प्रिंट आउट निकाल के अपनी जो साइट है टूनेट वहां पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, उसको लगा के रखना होता है वहां पे। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरर किस वजह से आ रहा है? कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, कुछ हिसाब पे मशीन की वजह, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हैं, जो कि आप डील नहीं कर पाओगे। जो टेक्निकल है उनको आप इजीली आप ट्रबल शूट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑल इश्यूज एंड एक्शन टेकन। अगर कोई आपको कोई ट्रबल शूट किया है तो उसका आपको होना चाहिए कि ये एरर, हम देखते हैं कि एरर्स तो आप लिख देते हो कि इतने एरर्स आए, कौन सा एरर है उस कोड के साथ उसको डॉक्यूमेंट करिए, उसका एक प्रॉपर लॉग शीट बना के कि क्या एरर आया था और उसका क्या रूट कॉज एनालिसिस हुआ और क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया। देन प्रॉपर स्टोरेज ऑफ चिप्स। सो अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। देखा है उल्टा उल्टे पड़े होते हैं बॉक्स, उस पर एक एरो बना हुआ होता है। हर एक चीज जब इतना अच्छी तरह से आपको सप्लाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस पर अपराइट का साइन जो पड़ा हुआ है उसका भी तो कोई सेंस है ना। उसको अपराइट साइन को अपराइट ही रहने देना, उसको उलट पुलट टेढ़ा मेढ़ा पड़ा अधिकतर साइट्स पर मिलता है। और कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन डस्ट फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। फीफो आपको यूज करना है। फीफो यूज नहीं करेंगे तो जैसे मैडम ने बताई 5 एरर्स देखने को मिल सकता है आपको। सो रिप्लेसमेंट ऑफ पाइपेट फॉर एक्सपायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि अधिकतर साइट्स को पता ही नहीं होता पाइपेट कब से यूज कर रहे हैं, वो 6 महीने से ऊपर निकल चुका होता है। इवन ये भी नहीं पता होता कि कितने महीने तक यूज करना है, और पता भी होता है तो उस पर कोई डेट नहीं होती है। सो अगर डेट नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा 6 मंथ ओवर हो गए या नहीं हुए? सो 6 महीने जैसे ही होने वाले हैं उससे 1 महीने पहले ही आप मॉल बाय को इन्फॉर्म कर दोगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिप्लेस करके जाते हैं, पुराने वाले को ले जाएंगे और नए वाला आपको दे के चले जाएंगे। सो ये पाइपेट आप देख रहे हो 6 माइक्रोलीटर होता है, फिक्स वॉल्यूम पाइपेट है, इसका कैलिब्रेशन आप नहीं कर सकते हो, इसको रिप्लेस ही होना होता है, मॉल बाय फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सो इसको रिप्लेस करना है टाइम से। पार्टिसिपेंट सन इन इक्यू राउंड्स। कुछ साइट्स ना पार्टिसिपेट ही नहीं करते इक्यू राउंड, ये आपके लिए ही हो रहा है, आपकी क्वालिटी एश्योर कराने के लिए लैब की। एक तो इंस्ट्रूमेंट का पता चलता है सही से काम कर रहा है कि नहीं, सारे सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं। दूसरा, जो टेक्नीशियन उस पर काम कर रहा है वो भी प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। सो जो इक्यू पैनल आता है उसमें पार्टिसिपेट करना ही है। देन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एलटीज एंड ऑपरेटर्स, ये बहुत जरूरी है। अभी हम कोई भी नहीं कर रहा है इसको, लेकिन जो भी उनका सीनियर है, आइदर STLS हो सकता है या कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है अगर साइट्स पे अवेलेबल, सो वो 5 सैंपल कोई DNA जो भी स्टोर किया हुआ हो उस DNA को दे सकते हैं और इस तरह से कॉम्पिटेंसी करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो पहले रिजल्ट था वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो एक ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो साइट्स पे। एंड फाइनली, प्रिवेंटिव केयर इज बेटर देन द रिएक्टिव रिपेयर। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप करते रहोगे तो आपको कोई भी रूट कॉज एनालिसिस और ये करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। सो दिस इज अबाउट द सेशन। थैंक यू वेरी मच to join the session. If there is any more question, please let us know. मैम ये एक क्वेश्चन था कि हमें जो पीपट जो चेंज करनी है ना मैम के लिए, तो उसको कितने सैंपल के बाद चेंज करना है? उसमें सैंपल का नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं है, उसको 6 महीने के बाद रिप्लेस होनी है वो। तो आप नंबर ऑफ सैंपल्स का मतलब नहीं है, उसमें उन्होंने हमें जो गाइडलाइंस दी हुई हैं फ्रॉम CTD, उसमें यही है कि दैट इज टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 6 months।
तो 6 महीने जैसे आपके होने वाले हों उससे 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले आप मॉल बायो को इन्फॉर्म कर दें। और जब वो नई पाइपेट देके जाते हैं, जिस दिन आपने उसको यूज करना शुरू किया उसके ऊपर मार्कर से उसकी डेट डाल लें। अगर उसके ऊपर नहीं डेट डालते तो आप एक रजिस्टर जिसमें आप कुछ और चीजों का लिखते होंगे, रिकॉर्ड वगैरह, उसमें लिख के रख लीजिए कि पाइपेट वाज रिप्लेस्ड ऑन दिस एंड दिस डेट। तो आपको जी पता रहना चाहिए कि किस दिन रिप्लेस हुई थी और 6 महीने कब होने वाले हैं। जी मैम। एक बात और मैम, कि सैंपल जो है हमने फास्टिंग का लेना है सुबह का, या फिर रैंडम सैंपल ले सकते हैं? रिपीट कीजिए क्वेश्चन। सैंपल जो है हमने स्पूटम सैंपल जो है सर, जो स्पूटम सैंपल हमने सुबह फास्टिंग का खाली पेट का ही लेना है, या फिर हम रैंडम सैंपल भी ले सकते हैं उसके लिए, ट्रूनाट के लिए? क्या हो? नहीं नहीं, आइडियली तो आपको जब भी टीबी डायग्नोसिस करना है तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल इज द बेस्ट सैंपल, हमेशा से ही है। ये तो आपने स्मीयर माइक्रोस्कोपी में भी करते थे, ये वाली बात है ना। रैंडम सैंपल का मतलब होता है स्पॉट सैंपल, मतलब बट वैसे हमें इन जनरल लेना है फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, प्रेफरेबली मतलब कोशिश जी करनी है कि वो लेना है, प्रेफर करना है। बट इन केस आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो कि डिफिकल्ट टू रीच है, जैसे पहाड़ी इलाका है आपका, या किसी ऐसे विलेज में हो आप, जो पेशेंट आपका जो है वो बेचारा 20-30 किलोमीटर से आया है, बस में चढ़ के आया है, पैदल आया है, स्कूटर से आया है, तो हो सकता है वो दोबारा ना आए, वो डिस्करेज हो जाता है अगर आप उसको बोलते हो कि दोबारा लाना सैंपल, मॉर्निंग का लाना। तो आप जी कभी ऐसे केसेस में आप उसको बोल सकते हैं कि अभी आप हमें स्पॉट सैंपल भी दे दें। बट आप उनको ये जरूर बोलिएगा कि सैंपल देने से पहले वो कुरला जरूर कर ले पानी के साथ में, ताकि अगर वो खाना वाना खा के आए हैं या तम्बाकू खा के आए हैं या पान खाया है किसी ने, ऐसी कोई चीज खाई है, तो उनके अंदर वो पार्टिकल्स भी आ जाएंगे जो आप सैंपल लेंगे, जो आपको इनहिबिट करेगा उसके अंदर कि वो क्लॉक कर देगा आपके डीएनए एक्सट्रैक्शन वाला जो कार्ट्रिज है, उसकी कैपिलरीज जो है वो क्लॉग हो जाएंगी उससे। इसलिए आप उसको बोलिए कि पानी का कुरला करके अच्छे से, और वो दोबारा अच्छा वाला गाढ़ा वाला सैंपल अगर दे सकते हैं तो अभी दे दीजिए, आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। पर आप कोशिश करिए कि अगर ऐसी वाली सिचुएशन नहीं है, ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट पास से ही आया है, दोबारा भी आ सकता है आराम से, और पेशेंट चलने लायक भी है, कभी कभी होता है बहुत सिक है पेशेंट, दोबारा नहीं आ पाएगा वो हमें लगता है, तो आप रैंडम सैंपल ले सकते हैं, रैंडम मतलब स्पॉट सैंपल ले सकते हैं। और अगर आपको पेशेंट ऐसा लगता है कि दोबारा आ सकता है, पास से आया है, दोबारा आ भी सकता है, चलने फिरने लायक भी है, तो आप उसको बोल दीजिए कि सबसे अच्छा सैंपल आपका अर्ली मॉर्निंग का सैंपल होगा। आप बिना कुछ खाना पीना खाए अगर अगर आप कलेक्ट करके लाते हैं तो वो सबसे बेस्ट सैंपल होगा। तो आप उसको ऐसा बताइए, समझाना। एक्चुअली जी पेशेंट जो होता है ना बेचारा, उसको आपने देखा होगा, जैसे अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें घर के अपने फैमिली मेंबर अगर थोड़ा सा भी प्यार से बात करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अगर हमें कोई ऐसे डांट के बोलता है तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सेम सिचुएशन पेशेंट की होती है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है अपनी बीमारी से, परेशान होता है, हताश हो चुका होता है। इसलिए आप उसको थोड़ा प्यार से समझाएंगे तो वो जरूर आपकी बात को मान लेगा। जी जी मैम, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट जो है अभी पॉजिटिव आ गया है हम्म। ट्रूनाट में, और रिपोर्ट लेने नहीं आ रहा है पेशेंट, कई बार ऐसा हो जाता है, और हम उसको कई बार कॉल भी करते हैं तो फोन भी नहीं उठाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो वो तो अपना तो निश्चय। रिपोर्ट तो आप निक्षे पे अपडेट कर रहे हैं ना। मैम निक्से पे तो उसका फिर HIV शुगर वगैरह हमारे पास कुछ नहीं होता, तो हम निक्से पे कैसे अपडेट करेंगे? नहीं, वो तो सारा कुछ आपको वहीं से आप अपना रिजल्ट ऐड रिजल्ट कीजिए इसमें। अगर पेशेंट का एनरोलमेंट हो चुका है निक्से में, तो जो जी इन्फॉर्मेशन आ रखी है वो वेल एंड गुड, और उसके बाद जो है, जो आपका रिजल्ट है वो आप अपडेट कीजिए। अच्छा, हमें पेशेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना सर? HIV की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको रिजल्ट अपलोड करने के लिए कोई HIV की जरूरत नहीं, पेशेंट की हाँ, जरूरत नहीं। लैब का काम है कि जो टेस्ट उन्होंने किया है उसका रिजल्ट उसमें अपलोड करना है, बाकी की इंफॉर्मेशन तो वो ऑलरेडी अपलोड करी होती है ना निक्षे जब जनरेट करते हैं तो। जी तो जी जी उसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो उसमें ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप जी अपनी लैब का जो टेस्ट आता है, रिजल्ट आया, वो अपलोड। जी 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 मैम। आपको रिजल्ट ऐड करना है, उसके बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, उसके बाद STS और STLS की रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी। वो अपने आप अब से उसको जब तक उनको ट्रेस करेंगे और बट प्रोग्राम में लाएंगे। बट आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और रहेगी, अगर आपका पॉजिटिव आ गया, आपने रिजल्ट अपलोड कर दिया निक्से में,
तो जी आपकी जिम्मेदारी यहाँ इतनी हो रहेगी कि एक जी सैंपल आप कलेक्ट करके एलपीए लैब भेज दें। दिस इज जी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जी 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 और एलपीए लैब रिजल्ट सैंपल भेज दिया तो वहां जी से रिपोर्ट रिसीव हुआ नहीं हुआ, दिस इज ऑल्सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके सर, ओके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जी नहीं जी कि बस हमने रिजल्ट टेस्ट किया और जी जी हाँ, तो इन बातों का ध्यान रखें और बाकी जी आगे ट्रीटमेंट देखते हैं। दे जी विल जी टेक केयर। जी थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और एक बात और ध्यान रखना, कहीं कहीं पे कुछ क्या होता है कि फॉलो अप भी करने लग जाते हैं ट्रू नेट पे, तो कभी भी ट्रू नेट इज नॉट फॉलो अप ऑफ द पेशेंट। जी हाँ, सिर्फ जी जी डायग्नोसिस के लिए हमें यूटिलाइज करना है दिस टेक्नोलॉजी को। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो, इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन वी आर जस्ट। सर मेरा क्वेश्चन है सर। गुड आफ्टरनून सर। जी जी, बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जैसे ना कोई केस 2 नॉट पर रजिस्ट्रेंट आता है, वो पीटी केस होता है पर लो होता है, 10 की पावर 2 होता है, पर हम लोग तो उसको एज पर द प्रोटोकॉल तो उसको रजिस्ट्रेंट दे देते हैं, बट हाँ, वो बाद में एलपीए में आता है तो वो सेंसिटिव आ जाता है, वो उसका क्या है? एज पर द प्रोटोकॉल तो यही है ना सर, न्यू केस का रिपीट करना, पीटी केस का रिपीट नहीं करना हम लोगों ने, ओनली हाँ, फॉर। न्यू केस का आपको रिपीट करना है, न्यू केस अगर होता है। बट हमारे यहाँ पर एक आधा केस न्यू ऐसा है। अंदर जब न्यू केस है, एमटीबी डिटेक्टेड लो है और रिफा जो है वो आपका इनडिटर्मिनेट आ रहा है या रिफा का रेजिस्टेंस भी वेरी लो आ रहा है, वेरी लो आ रहा है, तब आपको रिपीट करना है विद द फ्रेश सैंपल। और वो जो फ्रेश सैंपल आप लेंगे वो अप्रोप्रिएट सैंपल होना चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी हमने देखा है कि पहली बार में तो उसमें एमटीबी डिटेक्टेड आ गया था, जब उनको रिपीट सैंपल लेने के लिए बोला तो उसमें एमटीबी नॉट डिटेक्टेड आ गया। वो क्यों होता है? वो ये नहीं है कि आपका टेस्ट की टेक्नोलॉजी गलत है या आपने कुछ गलत किया है, वो उसका मतलब ये होता है कि अप्रोप्रिएट सैंपल हैज नॉट बीन कलेक्टेड सेकेंड टाइम। इसलिए आपको वो जरूर ध्यान रखना है कि अप्रोप्रिएट सैंपल दिया जाए। बट अगर रिफा रेजिस्टेंट आ गया है उसके अंदर नेट में, तो एलपीए में सेंसिटिव आ गया आप कह रहे हैं? यस मैडम, वो भी पीटी केस है। कौन सा केस? कौन सा केस है? प्रीवियस ट्रीटेड केस है वो। अच्छा, प्रीवियसली ट्रीटेड केस है। हाँ, वो 10 की पावर 2 आया है एमटीबी में, रिफ डिटेक्टेड आया है, तो एज पर द जो नॉर्म्स हैं उसमें कभी हम लोग उसको रिपीट तो करते नहीं। बाद में वो एलपीए के लिए आया, एलपीए में वो सेंसिटिव आया, बाद में हम लोग कंफर्मेशन के लिए उसको सीपीनेट किया इन आयरल, वो फिर सेंसिटिव आया। आप हाँ, एक तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जिसने भी उसका नेट टेस्ट किया था पहले जब वो रेजिस्टेंट आया था वो ठीक से नहीं हुआ होगा, नंबर वन ये हो सकता है। नंबर टू, उसमें कुछ और भी हो सकता है, जो क्योंकि उसमें जो प्रोब होती है ना, जो हमारी एलपीए की प्रोब है वो अलग रीजन को डिटेक्ट करती है, और जो प्रोब्स इसमें है सीबी नेट में या ट्रू नेट में है वो अलग रीजन को डिटेक्ट करती हैं। बट काइंडली सेंड ऑल दो सैंपल्स टू एनआरएल। अगर ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल केस आता है तो उसके पहले का सैंपल और सेकंड सैंपल जिसमें आपकी कंट्रोवर्सी आती है बिटवीन एलपीए एंड नेट टेस्ट, उन सैंपलों को आप प्लीज एनआरएल में भेजें। हम उसको बताएंगे आपको उसका सोल्यूशन। क्लियर? ठीक है मैडम, पर ये है ना मैडम, उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट पर डाल दिया ना पहले डिस्ट्रिक्ट में, वो नाट 2 नॉट में वो रेजिस्टेंट आया, बी पर डाल दिया उन्होंने, ठीक है ना। अब वो डीआरटीबी वाला डीएसटीबी में हम लोगों ने कंफर्म करके ही भेज दिया उसको। हम लोगों ने आयरल में एलपीए किया, एलपीए सेंसिटिव आया, फिर उसका ही हम लोग कंफर्मेशन के लिए सीपीनेट किया, सीपीनेट पर भी सेंसिटिव आ गया वो, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को रिलीज कर दिया रिजल्ट एलपीए का, वो सेंसिटिव है इन ड्रग्स। बट वो डीआरटीपी से अब डीआरटीपी में जाएगा नहीं, वो प्रोटोकॉल में है निक्षय में, उसका क्या करें? रेयर केस है वैसे मैडम, 1-2 ही केस आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका ये है कि उस बंदे को देखिए, आप टेक्नीशियन ने कहीं पे मिक्सिंग किया है सैंपल का। फैंटम हाँ, हो गया हो। ये वो उसने पहले किसी और का सैंपल था, किसी और को लगा दिया, या तो कुछ ऐसा हुआ है, नंबरिंग गलत हुई है, मार्किंग गलत हुई है, या रिपोर्टिंग गलत हुई है, वो देखना पड़ेगा आपको उस साइट पे मशीन के रिजल्ट क्या है। हो सकता है उसने रिकॉर्डिंग में गलत किया हो। क्या उस बैच में कोई तो रेजिस्टेंस केस नहीं है? हाँ, जो ट्रू रेजिस्टेंस हो। हाँ, मैंने मशीन की फोटो मंगवा ली थी वहां से, वो हाँ। तो वाकई है मैडम, एक्चुअली आगे पीछे सैंपल भी कोई रजिस्टर नहीं है उसके, मैंने वो भी रजिस्टर मंगाया था उसका, वो मैंने मॉल बाय से विजिट करवा के उसका करवा लिया वो।
बट ये ओनली 1-2 केस ही है ओवरऑल। लुधियाना का पेशेंट था, 1-2 ही पेशेंट है, रेयर है वो। जो 3 कंकॉर्डेंस रिजल्ट आते हैं बिटवीन एलपीए एंड नेट टेस्ट, डेफिनेटली वो बहुत कम होते हैं, बट अगर आते हैं तो उनको प्लीज आप एनआरएल में भेजेंगे, फिर हम उनको आपको बताएंगे। डन मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। So if there is no more questions, we can close the session. Thank you everyone to attend the session. Thank you. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन, बाय। Thanks. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Thank you.